हाँ जी बच्चों, आज मैं थोड़े सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट 4 ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ 4 ਚੋਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। ठीक है, सब तो पहला तो यदि डेफिनेशन सेल्फ इंडक्टेंस की क्या होती है। तो डेफिनेशन क्या है सेल्फ इंडक्टेंस की? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए कॉइल, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ which it opposes the growth or decay of current through it। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ देयर इज change of magnetic flux linked with a coil, ਜਦੋਂ ਵੀ magnetic flux linked with a coil change ਹੁੰਦਾ, then EMF is induced inside the coil। coil ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ EMF induced ਹੁੰਦੀ ਹੈ। EMF induced last as long as the change continues। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ EMF ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੇਂਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। तो ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਸੇਮ ਕੋਇਲ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਇਲ ਦੇ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਤਾ, फिर करंट डिके करेगा तो डिके ने भी अपोज करता है। तो इट अपोजेस द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट। ये दोनों चीज़ों ਨੂੰ अपोज करता है। ਮੀਨਸ ਜੇ ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਕਰੰਟ ਡਿਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘਟਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। तो this is also called inertia of electricity। very important। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ inertia of electricity ਦਾ? ਕਿ inertia ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 1 ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। it is a property by virtue of which a body is unable to change its present state of motion। ਕਿ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो ये भी वही प्रॉपर्टी होगी। That is why it is called inertia of electricity। Okay, now let us demonstrate the self inductance effect। demonstrate ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ, ਕੀ ਲਾਇਆ, ਤੋ ਪੈਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਟ ਲਾਇਆ। ਉੱਪਰਲਾ ਇੰਡਕਟਰ L ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਇੰਡਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਥੱਲੇ R ਸ਼ੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲਾਇਆ B1, ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲਾਇਆ B2। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀ K ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ B2 ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕੀਤਾ B2 ਗਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ B1 ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ। B1 ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ B1 ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਲ ਸੀ, ਕੋਇਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੈਕ EMF ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬੈਕ EMF ਨੇ ਗਰੋਥ ਆਫ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਗਰੋਥ ਆਫ ਕਰੰਟ ਘਟਿਆ ਤਾਂ B1 ਦਾ ਗਲੋ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਘਟਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ B2 ਗਲੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ B1 it takes some times to glow। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ B1 ਪੂਰਾ ਗਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਗਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ B1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ L ਇੰਡਕਟੈਂਸ L ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ EMF ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਗੋਂ B1 B2 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀ K ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਓਪਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਰਕਟ,
I2 करंट बिल्कुल ड्रॉप कर देगा 0, तो B2 बिल्कुल एकदम बंद हो जाएगा, मतलब ऑन भी होया एकदम होया ते बंद होया तां भी एकदम होया, लेकिन B1 ने बंद भी छेती नहीं होना। जे ऑन छेती नहीं ना होया, जग्या छेती नहीं ते बुझूगा भी छेती नहीं। क्यों? क्योंकि हुण बैक ईएमएफ उल्टी डायरेक्शन च पैदा होएगी। हुण डिके ऑफ करंट हो रहा है, इन्हें डिके नहीं होने देना बैक ईएमएफ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ B1 ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। तो इसनों आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हैं सेल्फ इंडक्शन इफेक्ट। ठीक है बच्चों ना, अगला टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। की पढ़े आप, फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो फ्लक्स फाई इज एनी कांस्टेंट ਨੂੰ L ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ L is constant of proportionality, फिर L is constant of proportionality and it is known as coefficient of self induction या फिर inductance। L ਨੂੰ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहने या फिर इंडक्टेंस। ठीक है जी, हाँ जी। अगे की है बच्चों, आप पढ़िया है फैराडे लॉ ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। की हुंदा फैराडे लॉ ऑफ EMI पढ़ के आया पिछों। इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन dt। तो फाई की वैल्यू तो L इंटू आई याद पढ़े आप, फाई इज इक्वल टू L इंटू आई, ये पुट कर देने ये फाई की वैल्यू L इंटू आई। L तक कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, की बन जाएगा इंड्यूस्ड EMF, अब बन गया E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L डी आई अपॉन dt। ठीक है, लेट्स फाइंड इट्स यूनिट्स। डी आई अपॉन dt क्या है, माइनस डी आई अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये यूनिट्स क्या होंगे, एम्पीयर पर सेकेंड, क्योंकि करंट के यूनिट्स आ गए एम्पीयर, टाइम दिया गया सेकेंड। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 1 वोल्ट है, सपोज 1 वोल्ट है, दैन SI यूनिट्स ऑफ L दे की होंगे 1 हेनरी। हेनरी यूनिट है इंडक्टेंस दे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दे। सिंबल है दा H, कैपिटल H ना लिखते हैं H। तो L की वैल्यू इत्थों लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड E अपॉन डी आई अपॉन dt। EMF 1 वोल्ट है, करंट है 1 एम्पीयर पर सेकेंड, देन L की वैल्यू क्या होएगी 1 हेनरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो की करना आपने को लेकर लॉन्ग सोलेनॉइड ड्रा किया, आई ये जो करंट फ्लो कर रहे हैं, L क्या होती लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ਇਹਦਾ एरिया क्रॉस सैक्शनल है A, क्रॉस सैक्शनल एरिया एक टर्न का। तो ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਲੌਂਗ ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I। म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड I क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू इट। नाउ फ्रॉम एम्पीयर सर्किट लॉ, ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ एम्पीयर सर्किट लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈप्टर ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਾਂ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I। ये डेरिवेशन कर चुके हैं। N क्या है, व्हाट इज N? N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ कितनी है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, देन इफ वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, कैपिटल N कितने बराबर है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नु टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड मल्टीप्लाई कर दिए, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। Now what is the magnetic flux linked with each term?
ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ B × A, ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ B, A ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਈਚ ਟਰਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਈਚ ਟਰਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ। ਟੋਟਲ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਿਉਂ? ਈਚ ਟਰਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕੈਪੀਟਲ N ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ N ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਈਚ ਟਰਨ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਨਾਲ, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया अपने को फाई, क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है जी, ओके। इस तरह अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद टोटल आ गया। हाँ जी, देन वैल्यूज पुट करनी है। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ? ਲਿਆ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ? μ0 Ni, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, μ0 Ni। ਇੱਕ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ क्या है? N × L, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ क्या आ गया। ਆ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ μ0 Ni, ਆ A ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? N × L। ओके, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, हाँ n मल्टीप्लाई हो जाएगा, की हो जाएगा? n²। ठीक है जी, ये की हो गया? n²। आ A है, L है, आ I मैं पीछे कर लिया। स्मॉल नंबर ऑफ टर्न से बाद देखते हैं आप इसमें। ठीक है जी, देन फाई की वैल्यू L × I, ये भी डिराइव की सी आप शुरू तो ही लईए आप। ठीक है जी, आ देखो पाई विच इज इक्वल टू L × I, तो फाई की वैल्यू L × I, इनू L × I इतने लिखता, I ना I कट्टिया गया, अपने को किया गया इंडक्टेंस। देखो L, I ना I कट्टिया गया, L की वैल्यू आ गई μ0 n² A × L। ये आ गया इफ स्मॉल n क्या है? याद करा दा थानू, एक ही है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जो स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n ना करना हो, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ना करना हो, तो स्मॉल n की वैल्यू पुट कर दी कैपिटल N / L, वो वैल्यू पुट कर देने इस इक्वेशन स्मॉल n की थां ते कैपिटल N / L, ये आ जाएगा कैपिटल n² / L², L ना L कटिया जाएगा, ये इक्वेशन रहेगी कैपिटल L की वैल्यू μ0 n² A / L। तो व्हाट आर द फैक्टर्स? इंपॉर्टेंट है लास्ट की, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड डिपेंड्स? केड़े केड़े फैक्टर्स ने? नंबर 1 है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, लेंथ। नंबर 2 क्या है? एरिया, एरिया। नंबर 3 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, स्मॉल n कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड। एंड नंबर 4 क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब परमेबिलिटी किया यूज की है। जे एयर है तो μ0, तो जे मीडियम है तो μ, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है ना, तो जे मीडियम है तो इंडक्टेंस लिखेंगे L μ × n² A / L, तो μ की वैल्यू जो पुट करनी पे लिखेंगे μr × μ0। μr क्या होगी? रिलेटिव परमेबिलिटी × μ0, तो L की वैल्यू लिख देंगे μr μ0 n² A / L। एक आधे वास्ते मैं लिख रहा फॉर एनी मीडिया अदर देन एयर वैक्यूम। तो याद रखो इन्हां 4 फैक्टर्स से कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन डिपेंड करती है। चारां दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है जे n क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ली गई है। जे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ली गई है कैपिटल N लिया गया, दैन ये लेंथ दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देना। ठीक है बच्चों, तो इन्ना कुछ बहुत आज वास्ते। ठीक है, अगले टॉपिक दे विच तुहानू करावांगे ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल्स। ठीक है जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।